You see a 40-year-old woman with heavy menstrual bleeding and uterine fibroid to discuss treatment option. Which of the following is the most cost effective treatment option that will ensure गारंटी एमेनेरिया? तो गारंटी एमेनेरिया आपके पास क्या हो जाएगा? हिस्टेक्टमी. The class of chemotherapeutic agent that is most effective in the management of women who have recurrent endometrial carcinoma. अगर recurrent endometrial carcinoma है तो उसमें हम क्या देते हैं? हार्मोन्स. ठीक है. A woman attend antenatal clinic following a scan at 36 weeks of gestation in her fourth pregnancy, which identifies anterior placenta previa. She had 3 previous cesarean births. What is the risk of placenta accreta? तो प्लेसेंटा एक्रीटा देखिए, अगर 1 प्रीवियस 1 सिजेरियन हो तो 3%, प्रीवियस 2 हो तो 11, प्रीवियस 3 हो तो 40, प्रीवियस 4 हो तो 61 और प्रीवियस 5 हो तो 67% होता है. ठीक है. 1, 2, 3, 4 एंड 5. 33-year-old, तो उसकी प्रीवियस 3 अभी 4th है तो 61%. ठीक है. 33-year-old woman is induced at 38 week of gestation because of mild preeclampsia. She wants to know how she would benefit from continuous electronic fetal monitoring as she felt it may limit her freedom of movement during labor. तो जो it will ये आपके पास जो कंटिन्यूस है, नॉट इंटरमीडिएट, कंटिन्यूस CTG जो है आपके पास हेल्प रिड्यूस इंसिडेंस ऑफ न्यूनेटल सीजर्स. ठीक है. लेकिन देयर इज़ नो चेंज इन इंसिडेंस ऑफ cerebral palsy or increased operative vaginal delivery, has high sensitivity but with limited specificity in the prediction of fetal hypoxia or acidosis. No significant difference in एबगार स्कोर, लेकिन थोड़ा बहुत 1 मिनट एबगार स्कोर को इम्प्रूव करता है, नॉट द 4 मिनट 5 मिनट एबगार स्कोर, 1 मिनट एबगार स्कोर को इम्प्रूव करता है. तो दो चीज़ों को ये बेहतर करता है, एक तो न्यूनेटल सीजर्स को 0.5% और इम्प्रूव करता है, दूसरा जो है ये 1 मिनट एबगार स्कोर को इम्प्रूव करता है. लेकिन पेरीनेटल मॉर्टेलिटी, सेरेब्रल पाल्सी और हाइपोक्सिक एंसेफेलोपैथी, इन पे इसका कोई इफेक्ट नहीं है. ठीक है. 28-year-old woman who had previous C-section is being counseled about VBAC. What information from her past obstetric history would give her the best chance of a successful VBAC? ठीक है. तो कहते हैं कि वैसे तो सक्सेस रेट है वीबैक का वो 72 to 75% है, लेकिन अगर उसके प्रीवियस वीबैक हों तो वो 85 से 95% उसका सक्सेस रेट बढ़ जाता है. ठीक है ना. तो women with one or more previous vaginal birth should be informed that previous vaginal delivery, particularly previous VBAC, is the single best predictor of successful VBAC. ठीक है. With a planned VBAC success rate of 85 to 90%. तो previous VBAC या प्रीवियस विजाइनल डिलीवरी ये जो है बेस्ट प्रेडिक्टर ऑफ सक्सेसफुल वीबैक है. ठीक है. अच्छा, 32-year-old Nelly Pera women attend gynae clinic for preconception counseling who had laparoscopic gastric band procedure 3 months ago. What is the minimum amount of time pregnancy should be delayed after bariatric surgery? तो जब भी बैरिएटिक सर्जरी होती है उसके बाद आपने कम से कम 12 मंथ का टाइम देना है. 33-year-old male smoker for last 10 years reported to family planning clinic for vasectomy. He is concerned about complication. What is the most common complication? अगर most common की तरफ आ जाएं तो फिर हेमाटोमा को चूज़ करें. ठीक है ना. chronic testicular pain रेयर है, हर पेशेंट में नहीं होता, और ये इसके लिए आप NSAIDs ट्रीटमेंट देते हैं. समटाइम इट गेट सो स्वेयर दैट यू हैव टू डू द रिवर्सल ऑफ वेसेक्टमी. सो इट इज़ नॉट सो कॉमन बट हेमाटोमा इज़ कॉमन. You are teaching ST2 trainee the basic principle of forceps delivery. Which type of episiotomy would be most appropriate to reduce the risk of severe perineal tear? So, when performing a mediolateral episiotomy, the cut should be at a 60-degree angle initiated when the head is distending the perineum. So, a mediolateral episiotomy with an angle of 60 degree away from midline. B is the correct answer.
36-year-old Nelly Perez, women in second stage of labor, has been pushing for 30 minutes. CTG show fetal heart rate of 170 beats per minute, reduced variability and late deceleration, having occurred for last 25 minutes. Vaginal examination show the head to be at ischial spines in OP position. Which of the following management option would be the most appropriate? अच्छा, नली पैरा से सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में है, ठीक है, और 30 मिनट से वो पुश कर रही है। बेबी उसका अच्छा अभी फीटल हार्ट रेट सीटीजी पे 170 है, वेरिएबिलिटी भी रिड्यूस है, लेट डिसेल्स भी आ रही हैं। विजाइनल एग्जामिनेशन पे हेड जो है स्केल स्पाइंस पे है, स्केल स्पाइंस यानी कि ज़ीरो पे मिड कैविटी में है, ठीक है, ओपी पोजीशन पे है। विच ऑफ द फॉलोइंग मैनेजमेंट ऑप्शन वुड बी अप्रोप्रिएट? इसमें से है कि अभी तक पुश करते हुए से सिर्फ 30 मिनट्स में है, ठीक है, और लेकिन सीटीजी देखिए उसकी ख़राब है, पैथोलॉजिकल सीटीजी आ रही है इन द मिड कैविटी। तो फीटल ब्लड सैम्पलिंग जो है, अभी अगर आप पुरानी उसको गाइडलाइन को देखते तो फीटल ब्लड सैम्पलिंग हैज़ अ रोल, लेकिन अब उसमें इतना रोल नहीं है। सिंटो तो सेकेंड स्टेज में आप स्टार्ट नहीं करेंगे। कैटेगरी 1 इमरजेंसी सी सेक्शन सेकेंड स्टेज में करना, इट वुड हैव मच मोर इम्पैक्ट। तो ये दो ऑप्शन निकल गए। फिर आपके पास तीन, ठीक है, फीटल ब्लड सैम्पलिंग, कैटेगरी 1 और स्टार्ट सिंटोसिनोन, ये तीनों निकल गए। 30 मिनट मोर पुशिंग, जो पेशेंट जो है उसको डी सेल्स आ रही हैं, सेकेंड स्टेज में है, 30 मिनट और पुश करवा के आपको क्या मिलेगा, उससे और वो हो सकता है फीटल डिस्ट्रेस। तो बेहतर है कि आप उसे एक ट्रायल दें ऑफ इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी इन थिएटर, ठीक है, क्योंकि शी इज़ इन मिड कैविटी और सीटीजीज मतलब ख़राब हो रही है मिड कैविटी पे, आप सी और जो है सेकंड स्टेज में है, सेकंड स्टेज पे आप सी सेक्शन नहीं कर सकते। बेहतर यही है कि आप ट्रायल ऑफ इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी दें, ठीक है। अच्छा, an infertile woman has taken clomiphene citrate for ovulation induction for one cycle. At the end of cycle, she came with severe pain in the left iliac fossa along with slight spotting. Ultrasound shows a cystic mass 6 into 5 centimeter on its appendage, mostly ovarian. The most appropriate management would be, अच्छा, ओवुलेशन इंडक्शन ले रही थी वो, ठीक है, उसके बाद लेफ्ट इलिक फोसा पेन हुआ और जो है स्लाइट स्पॉटिंग हुई, सिस्टिक मास भी मिल रहा है। अब आपने उसको डायग्नोस मतलब आपको क्या लग रहा है कि ये ओवेरियन एक्टोपिक हो सकती है, उसकी डायग्नोसिस के लिए आप क्या करेंगे, लेप्रोस्कोपी, ठीक है। इसके अलावा भी अगर बाकी ऑप्शंस देखें तो ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन से क्या होगा, मतलब आपको एक मास मिल रहा है, आप यू शुड प्रोसीड फर्दर। करेक्ट इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट का कोई इसमें रोल नहीं है। स्टॉप क्लोमिफेन सिट्रेट, तो मास से रिलेटेड क्या है, ठीक है, बेशक आप उसे स्टॉप करते हैं लेकिन फर्दर दे आर इंक्वायरिंग अबाउट द मास, तो एस्पायरेट करें, मास है किस नेचर का, क्या है, हाउ कुड यू एस्पायरेट डायरेक्टली, ठीक है। तो इसलिए आप उसके लिए क्या कहते हैं, डायग्नोस करने के लिए लेप्रोस्कोपी। पर अगर गाइडलाइन में देखें तो डेफिनेटिव सर्जिकल ट्रीटमेंट इज़ प्रेफर्ड इफ़ लेप्रोस्कोपी इज़ रिक्वायर्ड टू मेक द डायग्नोसिस ऑफ एन ओवेरियन एक्टोपिक, पर इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग लेप्रोस्कोपी इज़ द बेस्ट। थैंक यू।